हेलो एवरीवन। वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 15 मार्च और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं। लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ कॉटन के बारे में देखेंगे, क्योंकि हाल ही में इंडिया काफी चर्चा में रहा है कॉटन सप्लाई को लेकर के। देन हम देखेंगे वास्को ब्रिज के बारे में, नेशनल शिपिंग बोर्ड के बारे में देखेंगे, हाल ही में रिलीज हुआ सेकेंड एडिशन फिस्कल हेल्थ इंडेक्स के बारे में देखेंगे, आईएनएस त्रिकंत के बारे में देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे मोजाम्बिक देश के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। According to the US Department of Agriculture, which country became the largest supplier of cotton products to the US in 2025? सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, अमेरिकी कृषि विभाग के अनुसार कौन सा देश 2025 में अमेरिका को कपास उत्पादों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं चाइना, वियतनाम, इंडिया या फिर बांग्लादेश। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो अभी हाल ही में इंडिया बन गया है लार्जेस्ट सप्लायर कॉटन प्रोडक्ट्स का टू यूएस। आप यहां देख सकते हैं, India became the largest supplier of cotton products to the United States in 2025, replacing China, according to the United States Department of Agriculture. So, US import of cotton products remained stable at 3.3 million tons, close to the 15-year average, and import from China fell to about 0.5 million tons, while India exported around 0.6 million tons to the US. So, high US tariffs on China and diversification of supply chains reduce dependence on China. India benefits from vertically integrated textile supply chains, helping meet traceability standards. So, the Uyghur Forced Labor Prevention Act and geopolitical risk also reduced US sourcing from China. इसके साथ ही अगर हम कॉटन की बात करें तो कॉटन को व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, एंड इट इज इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल क्रॉप कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 1/4 ऑफ द ग्लोबल आउटपुट। सो नियरली 2/3 of the area is rain-fed, making cultivation highly dependent on monsoon, while only 33% is irrigated. So, cotton civilization in India dates back to the Indus Valley civilization, with the textiles famed worldwide for their quality and craftsmanship. But under colonial rule, India was reduced to a raw cotton supplier for British mills. So, कॉटन के लिए जो ग्रोइंग कंडीशंस की अगर हम बात करें तो वो चाहिए होती है, सब ट्रॉपिकल क्रॉप है ये। सो इट रिक्वायर्स अ वार्म, सनी, मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट विद एडिक्वेट ह्यूमिडिटी। आप ध्यान रखेंगे, कॉटन जो है वो एक खरीफ क्रॉप है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is Bascule Bridge that was recently seen in the news? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा बास्कुल ब्रिज क्या है? आपके ऑप्शंस हैं a bridge supported by cables hanging from towers. Second, a bridge that can be raised to allow ships to pass underneath. Third, a bridge built entirely with stone arches या फिर a floating bridge made on water. तो बताना है, हाल ही में चर्चा में रहा ये जो पास्कुले ब्रिज है ये इनमें से क्या है?
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इट इज अ ब्रिज दैट कैन बी रेज्ड टू अलाउ शिप्स टू पास अंडरनेथ। आप देख सकते हैं द यूनियन गवर्नमेंट अप्रूव्ड अ 117.54 crore project to renovate the Baskul Bridge at Syama Prasad Mukherjee Port. So, a Baskul Bridge is a movable bridge that lifts upward to allow ships and boats to pass, and it is also called a lifting bridge or drawbridge. It works using a counterweight system that balances the movable part of the bridge called the span or leaf. So the counterweight is usually heavier than the leaf, making lifting easier and reducing energy use. So bridges may have single or double leaves and rarely triple or quadruple sections. Cable, chain and pulleys create mechanical advantage, reducing the force needed to raise or lower the bridge. So आप ध्यान रखेंगे हाल ही में जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने अप्रूव किया है कि वो रेनोवेट करेगा बास्कुले ब्रिज को एट श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल शिपिंग बोर्ड। सो यहाँ पर जो राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज अ परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर द मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958। और सेकंड स्टेटमेंट है इट ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है नेशनल शिपिंग बोर्ड से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है। आप ध्यान रखेंगे नेशनल शिपिंग बोर्ड जो है ये ऑपरेट होता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। आप देख सकते हैं सो ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा because recently the government of India held a high level interaction with the National Shipping Board to address sectoral challenges amid global maritime uncertainty। सो ये जो नेशनल शिपिंग बोर्ड है ये एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1959 में अंडर सेक्शन 4 ऑफ द मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958। So it advised the government of India on the matters related to shipping, including the development, and it has played a very distinguished role in the maritime development of the country, as its deliberation and recommendations have contributed to the evolution of a sound and pragmatic national maritime policy over the years. So this organization consists of chairman and members, 6 members elected by the parliament, जिनमें से 4 लोकसभा से और 2 होते हैं राज्यसभा से। The chairman and other members of the board held office for a period of 2 years। और आपने देखा कि जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding fiscal health index। सो यहाँ पर जो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द नीति आयोग। सेकेंड it provides a comprehensive and comparable assessment of the fiscal performance of Indian states। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है जो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स है उससे संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं।
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप ध्यान रखेंगे फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो है इसको शुरू किया है नीति आयोग ने। आप देख सकते हैं डिटेल में। सो रिसेंटली द नीति आयोग released the second annual edition of the Fiscal Health Index 2026 in New Delhi. So it was introduced by Niti Aayog, provides a systematic framework to evaluate the fiscal performance of 18 major Indian states, 10 northeastern and Himalayan states. So it provides a comprehensive and comparable assessment of the fiscal performance of Indian states. And the index has been designed as a data-driven framework to evaluate fiscal soundness, guide reforms, and promote evidence-based fiscal policy making across states. So ये जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है इट इज बिल्ट ऑन द 5 key pillars। और ये पिलर्स है क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, फिजिकल प्रूडेंस, डेट इंडेक्स एंड डेट सस्टेनेबिलिटी। And this index classifies states into four tiers, जिनमें first है achievers की category. So these are states with strong fiscal discipline, high own tax revenues, low deficits and manageable debt. Then आता है front runner. So these states maintain broadly sound finances but fall short to the top tier on one or more indicators. Then there is third one, performers. They occupy the middle ground with mixed results across the 5 pillars. And then there is aspirational. So these states are those facing the most significant fiscal stress, characterized by persistent deficits, high debt, and limited revenue capacity. So आप ध्यान रखेंगे ये जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। अब अगर हम स्टेट्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो ओडिशा, गोवा एंड झारखंड हैव बीन कैटेगराइज्ड एज अचीवर्स। यानी कि टॉप पर जो स्टेट्स हैं वो है ओडिशा, गोवा और झारखंड। देन कर्नाटका एंड तेलंगाना मूव्ड फ्रॉम फ्रंट रनर टू परफॉर्मर एंड केरला एंड तमिलनाडु स्लिप्ड फर्दर टू द एस्पिरेशनल ग्रुप। नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश हैज टॉप्ड इन द इंडेक्स फॉलोड बाय उत्तराखंड, त्रिपुरा, मेघालय, असम एंड मिजोरम। आप ध्यान रखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न या जो हिमालयन स्टेट्स हैं उनमें जो राज्य टॉप पर है वो है अरुणाचल प्रदेश। और आपने देखा कि अचीवर्स की कैटेगरी में 3 राज्य हैं, ओडिशा, गोवा और झारखंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding INS त्रिकंद। तो यहां पर INS त्रिकंद से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट ऑप्शन है इट इज अ तलवार क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट ऑफ इंडियन नेवी। और सेकेंड स्टेटमेंट है इट वॉज बिल्ट बाय द यांता शिपयार्ड इन कलिनिग्राद, रशिया। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है INS त्रिकंद से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहां पर ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप देख सकते हैं इंडियन नेवल शिप INS त्रिकंद विल पार्टिसिपेट इन द 58th नेशनल डे सेलिब्रेशन ऑफ मॉरिशस। सो
ये जो आईएनएस त्रिकंद है ये एक तलवार क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है इंडियन नेवी का, एंड इट इज द थर्ड एंड फाइनल शिप ऑफ द सेकेंड बैच ऑफ तलवार क्लास फ्रिगेट्स ordered by the Indian Navy. So it was built by the Yanta shipyard in Kaliningrad, Russia, and it was commissioned into the Indian Navy on 29th of June 2013 at Kaliningrad, Russia. So it is a part of the Indian Navy's Western Fleet and operates under the Western Naval Command, जिसका हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई में। सो ये जो आईएनएस त्रिकंद है, इट कैरीज अ सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल्स सिथिल, एंड अपग्रेडेड A190 मीडियम रेंज गन, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल 30 mm क्लोज इन वेपन सिस्टम, anti-submarine weapons such as torpedoes and rockets, and an advanced electronic warfare system. So the weapons and sensors are integrated through a combat management system, Trivowin M, which enables the ship to simultaneously neutralize multiple surface, subsurface, and air threats. So it is powered by 4 gas turbines, and it is capable of speeds more than 30 knots and is configured to carry a Kamov 31 helicopter. तो आप ध्यान रखेंगे, ये जो आईएनएस त्रिकंद है ये हाल ही में पार्टिसिपेट करेगा जो 58th नेशनल डे सेलिब्रेशन है मॉरिशस का। मॉरिशस की बात करें तो इसको ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस के नाम से जानते हैं, एंड इट इज आइलैंड कंट्री इन द इंडियन ओशन लोकेटेड अबाउट 2000 किलोमीटर्स ऑफ द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका एंड ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। मॉरिशस की जो कैपिटल है वो है पोर्ट लुइस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to Mozambique, consider the following statements. So यहाँ पर मोजाम्बिक से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री। सेकंड, it shares its border with Zimbabwe and South Africa. Third, the river Zambezi flows through this country. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है मोजाम्बिक से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर मोजाम्बिक से संबंधित 2 ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, और वो स्टेटमेंट्स हैं सेकंड और थर्ड। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि मोजाम्बिक एक लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है, इसका कोस्ट लाइन है ऑन द इंडियन ओशन टू द ईस्ट। आप देख सकते हैं। सो अभी मोजाम्बिक काफी चर्चा में रहा बिकॉज रिसेंटली India has shipped 500 metric tons of rice to Mozambique following severe flooding that has impacted several central and southern provinces. So ये जो मोजाम्बिक है, it is a country in southern Africa and is located in the southern and eastern hemispheres of the earth. मोजाम्बिक की बॉर्डरिंग कंट्रीज की बात करें तो इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं जिम्बाब्वे फ्रॉम वेस्ट, इस्वातिनी एंड साउथ अफ्रीका फ्रॉम साउथ एंड साउथ वेस्ट, जाम्बिया एंड मलावी फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट, एंड तंजानिया फ्रॉम नॉर्थ. So it has a coastline on the Indian Ocean to the east, and the island countries and territories of and the island is countries and territories of Madagascar, Comoros, and Meto are separated from Mozambique by the Mozambique Channel. आप ध्यान रखेंगे मोजाम्बिक की जो कैपिटल सिटी है वो है मापुतो. So the climate is most of the Mozambique is tropical and warm. River Zambezi being the largest, and other rivers are Limpopo, Likango,
Liri and Rovuma, etc. लेक्स की बात करें तो मोजाम्बिक की जो लार्जेस्ट लेक है वो है लेक मालावी। The country's principal natural resources are natural gas, coal, mineral, sand, hydropower, and most likely oil. So आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।